Okay, now third law we will see. Third law of exponent. First we will see the law. अच्छा, a upon b अगर दोनों का पावर रेस टू m होता है तो हम लोग पावर सेपरेट कर सकते हैं, तो a रेस टू m अपॉन b रेस टू m आता है. दिस इज आवर थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. वी विल सी द एग्जाम्पल नाउ. फॉर एग्जाम्पल 2/3 का पावर 3 है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 3 अपॉन 3 to the power 3. यस, हु विल टेल मी व्हाट इज 2 to the power 3? What is 2 to the power 3? Yes, Divyal बोलो. Yes, sir. 2 multiplied by 3 times 2 raised to power 3 equals to 2 into 2 into 2. And 3 raised to power 3 is equals to 3 into 3 into 3. Okay. So what it comes then after multiplication? Sir, 6/27. 2 into 2 into 2, Sorry, 6 sir, होता. 8/27. 8/27. One day I will have to take the tables now, huh? Okay, so 8/27 is the answer. Mute yourself. Anshika Gilda, you will tell me the answer for the second example of this law only. Yes, sir. Okay, you can see the example. 1/6 का whole का power है 2. Yes, sir. 1 raised to 2 upon 6 raised to 2. 6 raised to 2. So what it will come then? 1 into 1 upon 6 into 6. Correct. So what is 1 into 1? 1 into 1 is 1 and 6 into 6 is 36. That's it. So the third law of exponent, is it clear to you? A upon b raised to m, it is equal to a raised to m upon b raised to m. Yes, sir. Mute yourself. Is anyone having any doubt in the third law? Okay, fourth law of exponent. Now see the fourth law of exponent. Okay, a raised to m the whole raised to n, ऐसा अगर होगा तो यहाँ पे पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन. एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा. और फॉर एग्जाम्पल 3 to the power 3 उसका पावर 2, यानी यहाँ पे रेस टू का रेस टू जो होता है उनका प्रोडक्ट हो जाता है. इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 6. Yes, who will tell me the value of 3 to the power 6? What it comes? 3 to the power 6. Okay, Sia Gilda. Roll number 24, 7th B, Sia Gilda. Bolo. What is 3 to the power 6? Sia Gilda, can you hear me? Yes, sir. Do you know the answer? Okay, Darshana Khandelwal. Sir, 3 multiplied by 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 3. What it comes? 3 9 9 3 4 27 27 answer will come 29. Answer is 729. Okay, 729. I have already
written the answer. Mute yourself. There is a lot of noise. दर्शना, आपके भाई को बोलो थोड़ा मस्ती कम करे बोलना. Okay, next one. Who will do the next example of the same law? One more example is there. Who wants to try it? कोई तो भी नया चाहिए मुझे. I don't want the regular students. I want the new ones. Who will try? New ones जो है वो हाथ ही ऊपर नहीं करते हैं नए बच्चे. रेगुलरली जो बस 2 8 10 बच्चे हैं वही हाथ अपना ऊपर करे. रिद्धि मंत्री. ओके, रिद्धि मंत्री. रिद्धि मंत्री. Yes, this is the example. Tell me, what will be the answer for this? रिद्धि मंत्री. म्यूट कर दिया उसने भी अपने आप को. हाँ, लक्ष्मी निवास जवर. लक्ष्मी निवास जवर. Yes, sir. So this is 2 raised to 3 third power, and it's in bracket, and then again the answer we have to do raised to 4th power. Yes, no, sir. So what will be the answer So, then? so for in bracket answer it will be, if we 2 raised to 3 power, so it will become 6, sir. Mute yourself. Aditi Tapadia बोलो. Aditi Tapadia. Aditi Tapadia. Aditi Tapadia. Yes, sir. बोलो. Sir, 3 into 4, 12. ओके, तो 2 raised to 3 into 4 हो जाएगा. 2 raised to 3 into 4 होगा. सो 2 का पावर 3 4 हो जाएगा 12. तो 2 का पावर 12 निकालना है अभी हमको. ओके, 2 का पावर 12. बहुत से लोगों ने कैलकुलेट भी किया है. हर्ष लाहौटी, दिव्याल जैन. द आंसर इज 2 का पावर 12 आता है 4096. ओके, 4096 will be the answer. Is the law clear to you? Yes, sir. Okay. Mute yourself. Next law, we will see the next law. Fifth law of exponent. This law is very easy. अगर -1 का पावर even होता है. ओके, अगर -1 का पावर even होता है. Tell me what are the even numbers? Which are the even numbers? Which are the even numbers? 2 4 again 6 8 10 12. ओके, अगर इवन पावर्स अगर होते हैं -1 के तो वो केस में आंसर आता है +1. ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे -1 to the power 2. 2 क्या है? ये इवन पावर है ना. -1 to the power 2 ये क्या है? इवन पावर है. तो इसका आंसर क्या आएगा? +1 आएगा. अगर आप इसको बाय प्रोसेस भी सॉल्व करते हो तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 आप ऐसे भी चेक करोगे तो आंसर +1 ही आएगा दोनों भी केस में. तो ये एक लॉ नहीं बोल सकते हम लोग, बट उन्होंने आपके बुक में लॉ दिया है, सो वी विल कंसिडर इट एज अ लॉ. ओके, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, -1 का इवन पावर अगर हम लोग लेंगे तो वो +1 आएगा. -1 का अगर इवन पावर हम लोग लेंगे तो वो +1 आएगा. इज इट क्लियर टू यू?
Is it clear to you? हाँ दिव्याल बोलो। सर जो आपने -1 दिया है ब्रैकेट में उसकी इवन पावर है, तो वो जो आपने इज इक्वल्स टू +1 दिया है, तो वहां पे अगर +1 रहा इवन पावर की तो उसको -1 कर सकते अपन। नहीं, अगर हाँ आपका जो डाउट है यहाँ पे अगर 1 है, 1 का पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 1 ही आता है ना, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आता है, बस दिक्कत हमको नेगेटिव में है। पॉजिटिव का सब आंसर पॉजिटिव आता है। यस और नो? यस सर। सो दैट्स व्हाई नेगेटिव के लिए लॉ बनाया, पॉजिटिव के लिए लॉ नहीं बनाया। पॉजिटिव का तो हमको पता है, पॉजिटिव का हर आंसर पॉजिटिव आता है। यस सर। ओके हाँ, जब हाँ अगर म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। जब अगर माइनस, अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे पहले इसका। अभी हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल? -2 का पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे -2 का पावर जो है वो इवन पावर है। कौन सा पावर है? वो इवन पावर है। हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस? आई वांट द आंसर ऑफ दिस। हाँ ओम बोलो। Yes, sir. हम्म Sir, we will multiply by -2 4 times. -2 multiply by -2 multiply by -2 multiply by -2. हम्म Sir, -2 plus multiply by -2 is equal to +2 मतलब +4 multiply by -2 multiply by -2. 4 multiply by 4 60. सो द फाइनल आंसर केम पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव आया था, देखो लॉ के केस में भी यहाँ पे क्या बोला था, -1 का अगर इवन पावर होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी देखो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, -2 का अगर मैं इवन पावर लेता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, Palak will give me the answer of next one. One more example is there? Yes, sir. No, no, no. One more law is there. -1 का इवन पावर देखा है अभी हमने, अभी -1 का ऑड पावर का क्या होता है वो देखेंगे अभी। अगर -1 का ऑड पावर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। यू कैन सी द रिजल्ट हियर, -1। ओके, -1 का इवन पावर अगर होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, -1 का अगर ऑड पावर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, -3 का पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा? पलक आप मुझे बताओगे। Yes, sir. Sir, the answer will come 3 -3 into -3 into -3. करेक्ट। सो व्हाट विल बी द आंसर? So answer comes -27. Because -3 into -3 it came 9, and +9 multiplied by -3 the answer is -27। तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता है जब ऑड पावर होता है। 3 क्या है? ये ऑड है, ऑड पावर है। यहाँ पे 4 था, ये इवन पावर है, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा था हर बार। यहाँ पे जब ऑड पावर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? Yes, sir. I have one doubt. यू हैव वन डाउट? ओके पूछो। Sir, if the sir in the bracket, if the number is positive and the odd number is there, so देन फॉर पॉजिटिव, ऑड हो इवन हो, एवरीथिंग कम्स पॉजिटिव ओनली। इसलिए पॉजिटिव का लॉ नहीं है कुछ भी। अगर सपोज ये 3 का पावर 3 है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी पॉजिटिव नंबर है और पावर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर फिर भी पॉजिटिव आएगा, 27। ओके, सो पॉजिटिव के लिए कोई लॉ नहीं है, ऑड हो इवन हो, पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर पॉजिटिव ही आता है। लॉ क्यों है? नेगेटिव के लिए लॉ है, क्योंकि नेगेटिव के लिए देखो यहाँ पे इवन पावर जब है तब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे ऑड पावर जब है तब आंसर नेगेटिव आ रहा है। सो इस वजह से इसका Yes. लॉ है। yes, sir. ओके, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। अभी दिव्याल का डाउट क्लियर किया था अभी हमने, फिर से उसको क्या? ओके बोलो दिव्याल।
सर अगर दोनों साइड अगर ऑड पावर भी माइनस में रही तो फिर दोनों दोनों साइड अगर नेगेटिव रही तो -3, ओके, -3 रेस टू -3 ऐसे बोल रहे हो क्या? माइनस -3 टू द पावर -3। ये देखो, इसके लिए एक और लॉ है इंडाइसेस का, a टू द पावर -m, इट इज व्हाट 1/a टू द पावर m। आपके बुक में है या नहीं है मुझे पता नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं है मुझे, अगर होता तो मैंने आपको ये लॉ भी बताया होता। ओके, तो ये वाले फॉर्म में है, देखो, a टू द पावर -m, तो इट विल बिकम 1/a टू द पावर। तो ये कैसे हो जाएगा फिर? 1/-3 का पावर 3 हो जाएगा ये, यूजिंग दिस लॉ। दिस इज ऑल्सो वन लॉ ऑफ इंडाइसेस। दिस इज ऑल्सो वन लॉ। सर फिर आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है ना, मुझे शोर बहुत आ रहा है आपके यहाँ से। आई थिंक सो शी इज डिस्कनेक्टेड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे अभी ये ऑड पावर हो गया, -3 का ऑड पावर, यानी -3 का ऑड पावर, यानी फाइनल आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, तो ये -1/-27 आएगा। सॉल्व करके भी वही आएगा। हाँ, कलश मानदाना इज हैविंग द डाउट। कलश, आप आपके सिस्टर का नाम चेंज किया कीजिए, ओके, बिफोर द सेशन। Sir, that you have written a Your voice is not coming, Kalash. Your voice is not coming. Kalash Mandhana, your voice is not coming. Voice is not coming, Kalash. yes, sir. Now, Sir, that you have written a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m. Sir, I don't understand that. it is also one law of indices. Okay, उसका जो एग्जाम्पल है ना, वो ये लॉ पे फिट होता है। उसने जो क्वेश्चन पूछा है मुझे, दिव्याल ने, आई विल सी आगे अगर आपको ये लॉ भी होगा तो वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। इट इज ऑल्सो लॉ लाइक दिस, जैसे हमने a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाई a रेस टू n पढ़ा है, वैसा ही ये भी एक लॉ है इंडाइसेस का। ओके, अभी तो नहीं है, आगे अगर होगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, -1 का इवन पावर +1 होता है, -1 का ऑड पावर माइनस होता है। -1 का इवन पावर पॉजिटिव होता है, -1 का ऑड पावर नेगेटिव होता है, बस इतना ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, sixth law. Okay, we will see the sixth law now. Sixth law of exponent. a का पावर 0 अगर होगा तो आंसर 1 आएगा। ओके, a का पावर अगर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा। a क्या है? a आपका बेस है और 0 क्या है? आपका पावर है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल -2 का पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा? -2 का पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा? -2 बेस हो गया, 0 पावर हो गया, तो यूजिंग दिस लॉ द आंसर विल कम व्हाट? 1। किसी का भी पावर अगर 0 आता है, कोई भी नंबर दुनिया का, उसका पावर अगर 0 आता है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे कि 3 टू द पावर 0, इसका आंसर 1 आएगा। 27 टू द पावर 0 होगा तो इसका आंसर भी 1 आएगा। a टू द पावर 0 होगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। b टू द पावर 0 होगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। जब भी पावर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, वो चाहे कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो। जब भी पावर 0 होगा तब आंसर 1 आएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू?
Is it clear to you? -2 का पावर 0 भी बनाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी नंबर बस पावर 0 अगर होगा तो आंसर बनाएगा। 0 का पावर 0, ओके 0 का पावर 0 ही आएगा। ओके सिर्फ 0 ऐसा है, अगर उसका पावर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 का सब कुछ 0 ही आएगा। वन फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, कोई भी पावर लो, 0 का आंसर 0 आएगा। बाकी जितने भी नंबर से -27 का पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर भी बनाएगा। तो यहाँ पे 3 का पावर 0 है तो इसका आंसर भी बनाएगा। इज इट क्लियर टू यू? Sia Gilda, I am not getting what you're saying. हाँ, tell me now. Turn on the mic and tell me. What? Other number came, so You repeat it again. Your voice is breaking. sir, if any other number, example 5 or 7 came, so what to do? For what 5 or 7 came? On powers number. If there is 0 now, So 5 to the power 0 you are saying. It will also come 1. बस power 0 होगा तो कुछ भी number रहने दो bracket के अंदर, answer will come 0. Whether the number is Yes. positive, negative, it doesn't matter. yes. Okay. When it's negative number, मैंने यहाँ पे negative का भी example दिया है दिव्याल, you check it. It is a negative number, its power is 0, then also the answer is 1. Whether the number is positive, whether the number is negative, no problem. अगर power 0 है, the answer is 1. Okay. So we will start the exercise then. At least first question we will do it today. Exercise 4.1. Now find the base and power of the following. Who will tell me the base and power in the given question? What is the base and what is the power? Yatharth Poplia will tell me the answer. Yatharth. Yes, sir. बोलो यहाँ पे बेस क्या है और पावर क्या है? Sir, 8 is the power and -7 is the base. ओके तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, बेस इज इक्वल टू -7 एंड पावर इज इक्वल टू 8. इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे. Okay, sir. अंशिका, विच लॉ इज रिमेनिंग बेटा? कौन सा लॉ रह गया है? मैंने तो सब कुछ लिया है, हम बताइए कौन सा लॉ रह गया है? अंशिका गिल्डा. सर टेक्स्ट बुक में 8 लॉस दिखा रहे हैं। तो लॉ बोलिए ना मुझे, कौन सा लॉ है बाकी अभी? सर आपने जो बोला था ना, a⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻m, ओके वो भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ओके ठीक है, मैं उसको अभी ऐड नहीं किया है मैंने पीपीटी में, मैं कल उसको ऐड करूंगा. आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करता हूँ. इनफैक्ट आई वांट एवरीथिंग, आई विल टीच यू एवरीथिंग. टुमारो आई विल इंक्लूड दैट इन माय पीपीटी एंड आई विल एक्सप्लेन इट. ओके ओके सर। फॉर अ व्हाइल नाउ जस्ट पे अटेंशन हियर. We will just complete the first question and we will wind up with the session. Okay, -25 to the power 3. Who will tell me the answer of this? Ishan Darak will tell me the answer of this. Sir, base -25 Base is -25. and power will 3.
and power is 3. Correct. Okay. Correct. Ishan, it is correct. Next one. यहाँ पे आदित्य तापड़िया बोलो. Yes, sir. हम्म Sir, base is -15 and power is -4. base is -15 and power is -4. -4. Correct. Okay, next one. Next one. Harsh Lahoti will give me the answer. Harsh Lahoti. Yes, sir. Hmm. Sir, base equals to 32 and power equals to -8. And power equals to -8. So you are able to identify the base and power. किसी को कोई difficulty नहीं है to identify the base and power. Okay, remaining part we will continue tomorrow as the PPT is not made in front of this. You can check it. यहाँ तक ही है PPT. Okay, इसके आगे अभी मैंने बनाया नहीं है. Okay, so I will have to make it in front of this, and I will include that law also, which is remaining in tomorrow's session. Okay.